अहमदुल्लाह अला नेमतिही वल आया व उसल्ली व उसल्लिमु अला हादिल मबूसल अमीन सैयद वलद आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सीलेंसी Abdul Aziz bin Gadir Ibrahim Al Gadir, my brother and our very dear ambassador from Saudi Arabia, Professor Sajid Mir Sahib, Raja Zafrul Haq Sahib, Allama Abdul Aziz Hanif Sahib, Excellencies and brothers. The Honorable Ambassador, while sitting, was asking me that which language are you going to address the gathering? Arabic, English or Urdu? I can do, alhamdulillah, all the three. But I think few words I'll say in English for the understanding of everybody, and then I'll seek the permission from the Excellency to talk in my own native language. Hubb al-Watan min al-Iman. And my original Watan is, of course, Saudi Arabia as it stands now as Awan. But I have to talk to the majority of the audience in Urdu as well. And I'll seek pardon from the Excellency in advance. I think as the Ummah stands now, we need to find out our own heroes in the new geopolitical situation of this region, and particularly the circumstances which are existing now in Afro-Arab world. And the new heroes because of two reasons. And we need to introduce our heroes, those who do exist already. And one amongst those is the great Saudi king who founded the present shape of Saudi Arabia. And those who are sitting here, my brothers, for them I'll say in Urdu, कि जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, आपको याद है, तो उस दौर में क्या सूरत हाल थी और लोगों की वफादारियां, लोग कड़े कहाँ थे, लोगों की वफादारियां कहाँ थी, लोग नज़र कहाँ आ रहे थे, लेकिन हकीकत में कहाँ थे, उस पे मुख्तसर वक्त में मैं इकबाल को कोट करूँगा, वन ऑफ हिज कपलेट विच इज़ द ग्रेट पोएम ऑल टाइम्स. He says, and I quote, कि क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल से हिजाजी बन न सका. इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका. Under these circumstances, when everybody was fighting for the survival of his own, different small pieces of this Saudi desert was scattered into hundreds, rather little more than the hundreds of regional powers, which was the powers of small sheikdoms. And then a person rose from the desert of Saudi Arabia, and that too from near the vicinity of Rub' al-Khali of Saudi Arabia, and that too from near of the Kuwaiti border, where you'll find the Tebis and Kahtani tribes in majority. He rises, comes up, and establishes one of the regional powers, which is now having its impact on the global level, which is Saudi Arabia of today. Let me pay great tribute to this man, which is King Abdul Aziz Al Saud. And I have absolutely no doubt the foundation of his kingdom was on three bases. One, a religious thought, of which my friend has already referred. I do not want to repeat. उस सऊदी अरब की तीन बुनियादें बहुत आम हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए. उनमें से पहली बुनियाद वो है जो अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब यहाँ बात कर रहे थे, एक थॉट की, वो है जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंड वॉज, if we recall all those who are living in the subcontinent of India and Pakistan right now, आपको याद है कि बहुत लंबे अरसे के लिए हज को उलमा ने बैठ के मतरूक कर दिया था, इसलिए कि जो हज के रास्ते थे वो महफूज नहीं रहे थे. जो घर से निकलता था, सामान, जान और आबरू तीनों से उसको हाथ धोने पड़ते थे. उन हालात में I think the greatest contribution for this part of the world, which was made by Saudi founding king,
Abdul Aziz Al Saud was, and that is why I have absolutely no reason in my mind, I tell you, that the system which he has created is functioning smoothly, peacefully and nicely. इसके अलावा मेरे जहन में कोई और बड़ी वजह नहीं आती कि जो निज़ाम उन्होंने बनाया था अपने उस किंगडम को फाउंड करने का, वो अभी तक कामयाबी के साथ और अमन व अमान के साथ और आबरू के साथ चल रहा है कि उन्होंने जो हुज्जाज के काफिलों के रास्ते थे वो महफूज किए. He first of all secured all those venues through which the Hujjaj used to come to Saudi Arabia for the pilgrimage of Makkah and Medina Sharif. The third thing which is very important is you need to have a clear-headed vision to lead the nation. मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी तहरीक, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें आई आपने देखा सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, लेकिन वो कोई बड़ी कामयाबी और बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकी. उसका सबब यह है कि जब तक आपके पर्पस की क्लैरिटी नहीं होगी, बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए जो मकसद है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद उस सिंसेरिटी की तरफ मैं आपको मिसाल ये देना चाहता हूं कि आपको फोकस रखना पड़ता है बहैसियत कौम कि जिस तरह अगर किसी ने लाहौर जाना है और यहां से वो तलागंग चला जाए और तलागंग से वो अटक चला जाए और अटक से फिर वो पेशावर चला जाए और कहे कि मेरा रास्ता कभी खोटा नहीं होगा, मैं कभी ना कभी लाहौर पहुंच जाऊंगा, रास्ता मुंतखब करना ये भी बड़ा ज़रूरी था. सो व्हेन ही थॉट दैट द नेशन which is scattered in many pieces has to be united, has to be put in one basket, then of course he led very successfully all the tribes which are there. And I may share this with the audience sitting over here. मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूं कि सारी फतूहात जो शाह अब्दुल अजीज की हुई वो तलवार के जोर पे नहीं हुई और वो घोड़े की पीठ पर भी नहीं हुई. उन्होंने मोहब्बतें भी बांटी. जो कबाइल बाज ऐसे थे और उनके मैंने जो मसादर हैं जहां से वो चले वहां भी मुझे इत्तफाक हुआ बैसियत तालिब इल्म जाने का. मिसाल के तौर पे बनु तय, आज भी बनु तय की अगर आप तारीख देखें तो वो इज्जत वाले लोग थे, करामत वाले लोग थे, फजीलत वाले लोग थे. जब अदी बिन हातम ताई हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लाए जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ऑफर करते हैं कि यहां आप तशरीफ रखिए, आप करीमैन के बच्चे हैं और मैं बैठने के लिए अपनी चादर आपको पेश करता हूं. वहां जब ये जाते हैं तो इनका तर्ज अमल घोड़े पे सवार एक कमांडर वाला नहीं होता, वहां वो चेंज हो जाता है. इन कबाइल के साथ वो शादी का पैगाम भेजते हैं. अपनी शादियां भी की, अपने भाइयों की शादियां भी की और अपने कबीले के अंदर उनको बाकायदा जो जिस शादी के रिश्ते में भी जो बनते गए उनको भी उन्होंने अमीर का लकब दिया. इस तरीके से उन्होंने एक यूनिटी फोर्ज की सारे लोगों के अंदर और एक किंगडम बनाई. मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो मैंने अफ्रो अरब सूरत हाल के ऊपर इशारा दिया, मैं इंसाफ नहीं करूंगा अपनी बात के साथ अगर मैं ये ना कहूं कि खा वो मिस्र हो, खा वो लीबिया हो, खा वो सीरिया हो और खा वो बहरीन हो, सारे ममालिक को यह हक पहुंचता है कि जिस तरह का उनका अपना निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है, अपने कवानीन उन्होंने बनाए हुए हैं, सिस्टम अपना उन्होंने बनाया हुआ है, उस सिस्टम को वो अपनी मर्जी के मुताबिक और अपने अवाम की मर्जी के मुताबिक चलाएं और किसी नाम के ऊपर भी किसी बैनुल अक़वामी इदारे को या किसी मुल्क को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उनके ऊपर चढ़ दौड़े. और ऐसे चढ़ दौड़ने की कोशिशें करने वालों की मैं इस फोरम से मुजम्मत करना चाहता हूं, इसलिए कि दुनिया के अंदर बहुत सारे और भी ममालिक हैं जहां पे मुजालिम हो रहे हैं, वहां तो उनका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है. कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, एरिट्रिया के अंदर जुल्म हो रहा है, मिंडानाओ के अंदर जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान पारा पारा, अफगानिस्तान लहू लहू, इराक लहू लहू. इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स दुनिया के अंदर, उनके ऊपर भी हमें खुलकर बात करनी चाहिए और उनकी भी हमें खुल करके निशानदेही करनी चाहिए. और एक तरफ यह सूरत हाल है और दूसरी तरफ यह है कि अगर कोई अंदरूनी झगड़ा है, जो भी झगड़ा है, उसमें कौन फरीक ठीक है कौन फरीक गलत है, इस बहस में भी हमें बहसियत एक सॉवरन मुल्क के नहीं पढ़ना चाहिए. इसलिए कि हमें पाकिस्तान की अपनी सॉवरेंटी, हमारी जो जोग्राफियाई हदूद हैं बहुत अजीज है उनके अंदर, इसी तरह से हमें दूसरे ममालिक की सॉवरेंटी की भी इज्जत करनी चाहिए, उसकी तकरीम करनी चाहिए, ताज़ीम करनी चाहिए और उसकी हिफाजत के लिए आवाज़ डेफिनेटली बुलंद करनी चाहिए. मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
हमारे प्रोफेसर साहब की शख्सियत जिन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया, 15 रहनुमा उसूल वज़ा किए, बहुत हमागीर शख्सियत है। मेरी इनके साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। और मेरे अल्लामा अब्दुल अजीज़ हनीफ साहब, हम तहरीक ख़त्म नबूवत के अंदर उस वक्त मुझे जब इनके साथ हथकड़ी लगी तो हाथ छोटा था, हथकड़ी उतर गई। हम कोई 4.5-5 महीने एक से ज़्यादा जेलों में कैदी रहे। तो इसलिए इनसे और मौलाना अब्दुल्ला शहीद से मेरा ऐसा ताल्लुक़ था कि मैं जब भी इनसे बात करता था तो हम एक दूसरे को या साहिब सिजन सूरह यूसुफ वाला कह के बुलाते थे। इनका भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है। और ये जो बुक इसलिए पढ़ी जानी ज़रूरी है, आप किसी मसलक से इख्तलाफ कर सकते हैं, करें, किसी से इत्तफाक कर सकते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन अच्छी चीज़ जहाँ भी आपको मिले वो ज़रूर पढ़ें। इस किताब को ऑब्जेक्टिवली इसलिए लेना ज़रूरी है कि इसके अंदर जो गवर्नेंस की टेक्निक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हम अर्थशास्त्र के अंदर कोटिला चांकिया की किताब में ही तलाश करें। इसीलिए मैंने कहा कि हमें अपने हीरोज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि हम मैकावली की प्रिंस के अंदर वो प्रिंसिपल्स और वो उसूल ढूंढने की तलाश करें। बहुत ज़रूरी ये है कि मेरे इलाके के एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले। तो उन्होंने अपनी नाकदरी पे जो कुछ कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि शेर मेरे इस देश अपने विच पांदे मूल न कीमत, शेर मेरे इस देश अपने विच पांदे मूल न कीमत, दूर दुराडे जिसनू लबन जाने बहुत गनीमत। और इसी को किसी ने उर्दू में, किसी शायर ने इस नाकदरी के ऊपर कहा। और मैंने तो तय किया है कि मैं प्रोफेसर साहब से कुछ किताबें खरीदूंगा, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करूंगा और बाकियों को भी गिफ्ट करूंगा। और उसका सबब यह है कि अगर कोई हमारा अंदर से इंडिजिनस आदमी, मुसलमानों में से किसी की पॉलिटिकल थॉट इतनी है कि वो क़यादत व सियादत के कोई रहनुमा उसूल फराम कर सकता है और उसने कुछ लिखा है तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो उर्दू में किसी ने कहा था कि मरने वाला अजीम शायर था, कौम अब शेर पढ़ के रोती है, मस्खरापन है इन अजीमों की, कदर मरने के बाद होती है। मैं इसके साथ ही 2 बातें और शॉर्टली आपकी तवज्जो के लिए कहना चाहूँगा कि आप जिनकी निस्बत, जो यहाँ बैठे हुए दोस्त हैं, आप मक्का शरीफ से और मदीना शरीफ से और जिस थॉट से आप जोड़ते हैं, आज के ज़माने में आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। और वो ज़िम्मेदारी ये है कि आप इन हालात में, जो मैंने आपको अफ्रो अरब वर्ल्ड के हालात बताए, उन हालात में एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, बहुत सादा सी बात मैं कहने लगा हूँ, बट आई होप दैट दिस विल एजिटेट एवरी माइंड। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, उस ज़माने में जिस घर के अंदर टेलीविज़न है या जिस घर के अंदर रेडियो है, वहाँ किसी वक्त भी किसी गैर शख्स का दाखिला मुमकिन है। इसलिए कि बटन ऑन होगा तो गैर आदमी आ गया ना जी। हमें इसके लिए तैयारी करनी है। आंखें फेर लेने से, कान बंद करने से, बटन मरोड़ देने से इलाज नहीं होगा। ये दुनिया है कंपटीशन की, ये दुनिया है मुकाबले की। इस दुनिया में हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया के लेवल के ऊपर इस उम्मत का इंसानों की बेहतरी के लिए, खा वो ईजादात हों, खा वो साइंसेज हों, खा वो उलूम हो, खा वो लीडरशिप हो, उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और कितना है। और आखिरी बात, एक मेरा कंक्लूडिंग नोट मैं नात शरीफ पे करना चाहता हूं कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रूज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। क्या मालिक, तू बादशाह है, मैं तेरा फ़कीर हूँ, तेरा हकीर बंदा हूँ। मैं जब हश्र के मैदान में पेश हूँगा तो मैं बड़े उज़्र पेश करूँगा, बहाने लगाऊँगा अपनी पुरतकसीर ज़िंदगी के हवाले से, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अगर तू समझे कि मेरा हिसाब नागुज़ीर है तो इतना मुझ पर करम करना कि मुझे मेरे नबी हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में रुसवा न करना, उनकी नज़रों से दूर ले जाकर मेरा हिसाब करना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जनाब बाबर आवान, आपसे हम कलाम थे। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं, मिल्लत इस्लामिया का दर्द अपने दिल में छिपाए, पाकिस्तान की सियासत में एहतराम समेटने वाली शख्सियत, नहायत कद आवर सियासी शख्सियत, जनाब सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक। हमारे
बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, जनाब राजा ज़फ़रुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जनाब मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब, एक्सीलेंसी उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ बिन इब्राहीम अल गदीर, एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, नहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, आज से चंद रोज़ पहले मोहतरम प्रोफेसर साहब ने मुझे ये किताब भी इनायत फरमाई और उसके साथ ये भी फरमाया कि मैं इस तकरीब में भी शरीक हूँ। मैंने जब ये किताब पढ़नी शुरू की तो आप यकीन कीजिए कि इतना अधिक मज़मून होते हुए भी न ज़हन पर बोझ पड़ा और न इसे छोड़ने को जी चाहा। इसकी इब्तिदा तो एक ऐसे मज़मून की तरफ थी कि क़यादत होती क्या है, कायद कौन होता है, और उसमें उन्होंने ख़ासी मेहनत से और बड़ी किताबों को पढ़ के उसका निचोड़ पेश किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कायद है इस दुनिया में इंसानों का, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई 2-3 चीज़ें या 10 चीज़ें या 15 चीज़ें मिलाकर वो कायद बन जाएगा। बाज़ लोगों को तो हालात बना देते हैं, बाज़ लोगों के ऊपर क़यादत ठौंसी जाती है, वो ज़्यादा देर फिर रह भी नहीं सकते। लेकिन असल क़यादत वो होती है जो इंसान के अंदर से पैदा होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होती है, वो नेचुरल एक गिफ्ट होता है। इसीलिए वो फिर जो वक्त का टेस्ट है उसमें वो पूरी उतरती है। ये जो शख्सियत लेट किंग अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की है, वो एक नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा हुए और ख़राब तरीन हालात में पैदा हुए। और मैंने अक्सर हिस्ट्री में देखा है कि जो क़यादत बदतरीन हालात में पैदा हो वो बेहतरीन सूरत इख्तियार कर जाती है। अगर किसी को बेहतरीन हालात मुयस्सर हों तो फिर वो एक कोई चैलेंज सामने उसको सर करके फिर वो नहीं आते उस मकाम के ऊपर। और मुझे तो उनसे इस लिहाज से भी अकीदत है कि पाकिस्तान बन जाने के बाद अगर सबसे पहले किसी ममलकत के सरबराह का पैगाम तहनीत आया तो वो लेट किंग अब्दुल अज़ीज़ बिन इब्न सऊद का था, जो हज़रत कायद आज़म को मुबारकबाद दी पाकिस्तान की इस्लामी रियासत के क़याम के ऊपर। और वो रिश्ता फिर एक जगह पर खड़ा नहीं रहा, उसमें इजाफ़ा ही होता गया। और मुझे इस बात का एहसास कई बार हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी, जो ऐसे लगता है जैसे वो पाबंदियाँ लगाने की कोई चिट्ठी लिखे हुए, आर्डर लिखे हुए बैठे होते हैं और ज़रा सी बात मौका मिले तो फ़ौरन पाबंदी लगा देते हैं। उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सोची समझी थी, ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ था। मुझे 4-5 ममालिक में भेजा गया, इस्लामी ममालिक में, और सबसे पहले मैं सऊदी अरब गया और वहाँ पर पहले दिन मुलाकात हुई जो आज शाह अब्दुल्ला हैं उनसे। उन्होंने कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं और ये जो एटमी धमाके आपने की, हम ये समझते हैं कि ये हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ है, और आपने जो कुछ फ़ैसला किया आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया, हम इसकी भरपूर तायीद करते हैं। और हमने आपस में बैठकर कुछ फ़ैसले किए हैं जो आपको मरहूम शाह फ़हद वो आपको बताएंगे।
मैंने कहा मैंने सुना है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो आपको ज़रूर मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिला तो वो बड़ी मुश्किल से खड़े होकर मुझे मिले, जो मैंने महसूस किया कि उस नकाहत में, उस कमज़ोरी में उनका खड़े होना कोई मामूल की बात नहीं थी। और उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहा कि लोग समझते हैं, तासर ये है कि शायद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर एहसान करता है, लेकिन जो एहसानात पाकिस्तानी कौम के हैं उसका तो हम कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। उन्होंने ये फरमाया कि एक तो हमने ये देखा है कि आपके ऊपर पाबंदी, इक़्तिसादी पाबंदी लगी है। पहला फ़ैसला तो हमने ये किया है कि आप चूँकि तेल पेट्रोल वगैरह बाहर से दरामद करते हैं, तो हम इब्तदाई तौर पर 3 अरब डॉलर का तेल फ़ौरन मुहैया आपको मुफ्त करेंगे। और हमने अपने जहाज़ों को कह दिया है कि पहले वो कराची जाएं और आपके जो रिजर्वायर्स हैं पहले उनको भरें, फिर उसके बाद कहीं और जाएं। और दूसरे, आपका जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का ख़र्चा है वो पाम ऑयल का है, जिससे आप घी वगैरह बनाते हैं, कुकिंग ऑयल बनाते हैं। तो हम आपको $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन देते हैं, जो आप मलेशिया से वो मंगवाते जाएं और जितना खर्च होगा हम उसकी पेमेंट करते जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी जो यहाँ काम करते हैं हमारे भाई, हम उनकी तादाद में इजाफ़ा करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो फिर उन्होंने दोबारा वो बात दोहराई कि इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, पाकिस्तान की क़ुव्वत सऊदी अरेबिया की क़ुव्वत है, वो आलम इस्लाम की क़ुव्वत है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की मदद करें। ये तो बात ही कोई नहीं है। आप देखते हैं कि उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो अज़मत है और उनके असरात उनके तमाम बेटों के ऊपर आज तक मौजूद रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि इसी किताब के अंदर एक ऐसा मौका आया जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, इसराइल को फ़लस्तीन के अंदर आकर वहाँ उनकी हुकूमत बनाने की कोशिश